میری مہمان آج محترمہ پروین شاکر ہیں. میں اور آپ ان کو ایک شاعرہ کے لحاظ سے پورے ملک میں ان کو جانتے ہیں, ملک سے باہر بھی ہم ان کو جانتے ہیں, لیکن اسینشل انڈرسٹینڈنگ آپ کے اور میری ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ پوئٹس ہیں, شعر کہتی ہیں. آج جب مجھے ان کا ریزیومے ہے, بایو ڈیٹا یا جسے کوریکولم وٹیا کہتے ہیں, وہ ملا ہے تو میں تو غاشی کھا گیا ہوں پروگرام سے پہلے. اس لیے ان سے بات کرنے سے پہلے میں وہ بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. 2 MA انہوں نے کیا ہوئے ہیں, MA لٹریچر اور MA لنگوسٹکس میں. ماسٹرز ان پبلک ایڈمنسٹریشن انہوں نے ہارورڈ سے کی ہوئی ہے, اور ہارورڈ کو وہ تعلیم کے مکہ میں گنتے ہیں, اتنی اعلیٰ یونیورسٹی میں پڑھایا بھی ہوا ہے. 4 کتابیں مجموعہ میں کہتے ہیں ان کی مارکیٹ میں آ چکی ہیں. ان کے بارے میں ایک فکر و فن, پروین شاکر فکر و فن یہ بھی ہے, اور جو ان کے مجموعہ کلام ہیں ان میں خوشبو جو ان کی پہلی اور بہت مقبول, صدبرگ بھی انہیں کی ہے, انکار اور کلامی, اور سب کے پیچھے ایک ہی فوٹو اور بڑی اچھی فوٹو. اس کے علاوہ یہ اور بھی ان کی ڈائمینشنز ہیں. یہ گورنمنٹ سرونٹ ہیں, CSS کا امتحان دیا, فورن سروس میں کے لیے سلیکٹ ہوئی, فورن سروس سے یہ جانا چاہتی تھیں DGM گروپ میں, DMG گروپ میں, آج کل کسٹمز میں. بے شمار اعزازات ان کو ملے ہیں, جن میں پرائڈ آف پرفارمنس ہے, فل برائٹ اسکالر ان ریزیڈنس USA, فیض احمد فیض انٹرنیشنل اوارڈ فار پوئٹری, گریجویٹ اوارڈ فار بیسٹ TV کمپیئر لٹریری پروگرامز, ظہور نظر اوارڈ فار اردو نظم, علامہ اقبال نیشنل ہجرا اوارڈ فار پوئٹری, بیسٹ پروبیشنر اوارڈ سول سروسز اکیڈمی, بیسٹ پوئٹ آف دا ایئر سلور جوبلی سیلیبریشن سر سید آدم جی لٹری اوارڈ فار خوشبو, بیسٹ پوئٹ اوارڈ. اور فیلوشپس میں تھامس جیفرسن فیلوشپ, ہارورڈ, اور آنرز اینڈ گرانٹس کی کافی لمبی لسٹ ہے. کالمنسٹ بھی رہی ہیں, ٹیلی ویژن پہ اینکر بھی کرتی رہی ہیں. آج آپ سے اور حوالوں کے ساتھ ان سے گفتگو ہوگی. پروین شاکر صاحبہ, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں. یہ بڑا امپریسو آپ کا بایو ڈیٹا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیملی پلاننگ جو ہے یہ تو عیاشی کا ایک ذریعہ ہے, اور کیوں آپ بچوں کو روکتے ہیں؟ رازق تو اللہ تعالیٰ. نہیں, رازق تو بے شک اللہ تعالیٰ, لیکن ہمارے پاس جو وسائل ہیں ہمیں وہ بھی تو دیکھنا چاہیے. اس وقت آپ کی آبادی کوئی 117 ملین کے قریب ہے. 2000 میں 150 ہو جائے گی. ریسورسز تو وہی رہیں گے, تو ہم اس 150 ملین کو کیسے فیڈ کریں گے؟ اور صرف فیڈ کرنا ہی مسئلہ نہیں, ہیلتھ بھی ہے, اسکولنگ بھی ہے, اور زندگی کی 100 چیزیں ہیں. امپلائمنٹ. تو پھر زندگی میں دھچکا لگے تو کیسے اسے آپ ٹیکل کرتے ہیں؟ شاک بریکرز ٹھیک رکھتے ہیں. شاک بریکر کر کے ٹھیک رکھتے. اور دھچکے لگے آپ کو؟ بہت نہیں, بہت کی تجھے کو بیمار کھا تو انہوں بہت دھچکے لگے میں دھچکے لگے. جی, what has been the major traumas of your life? I'm a single parent. ٹھیک. اور جس سوسائٹی میں ہم رہتے وہاں پہ یہ ایک بہت مشکل کام ہے. اچھا. It's a very hard life to lead. اور میں کوشش کروں کہ اس کو پریزنٹ بنا سکوں. رشتے وغیرہ اپنے لیے بھی رشتے وغیرہ آتے ہیں؟ نہیں, it's too late. کیا آپ ہمیں ڈپریس کر رہی ہیں بات کر کے. I'm a mother of a teenage son. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. Therefore. اچھا, بیٹا شاعری کرتا ہے کہ نہیں؟ بالکل نہیں کرتا. آپ کو پتا ہے وہ نیورو سرجن بننا چاہتا ہے. میرا خیال ہے اس کا سبب یہ کہ ون کیس از رائٹ. جی. اچھا, یہ خود کلامی, یہ آپ کی دس ناٹ دی لیٹسٹ, آپ کے بارے میں یہ کتاب بھی بنی ہے, وہ کون سی یہ ہے؟ جی, چھپی ہے, بنی نہیں ہے. پروین شاکر فکر و فن. جی. اچھا, یہ فوٹو کو پرانی ہے؟ بہت پرانی نہیں, بہت پرانی. کچھ آپ نے تھوڑا سا میری طرح ویٹ پٹ آن کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اسٹیٹس میں تھی بہت زیادہ پیور کھانا. جی. اچھا, اس میں آپ کے بارے میں آرٹیکلز اور اسیسمنٹ آف یور ورک. اچھا, اور خوشبو ہے وہ تو ہم دیکھ لیے, اور پھر یہ ہے میں ٹائٹل صدبرگ پڑھ کے دکھائیں. صدبرگ. اچھا جی. اور ہر کتاب کے پیچھے فوٹو وہی ہے.
جی یہ فوٹو آپ کیوں نہیں چینج کراتے؟ فوٹو کیوں چینج کرو؟ نہ کرائیں جی، ہم انکار جو ہے نا وہ لیٹسٹ ہے، انہیں لیٹسٹ مراد 2 سال پرانی، اور کتابیں جو ہیں 77 آنورڈس کی. تو جو میرا پرنٹر ہے اس کا فلسفہ یہ ہے کہ لوگوں کو آسانی ہوگی 4 کتابیں خریدنے میں، تو آپ کتاب تصویر یہی رکھیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ خود کلامی ٹائٹل کون سجیسٹ کرتا ہے کتاب کا؟ یہ مل کر میں، میرا پرنٹر، پبلشر، ہم مل کر طے کرتے ہیں. اچھا چلیں جی، خود کلامی سے ہمیں کچھ اس سے پہلے ادبی دنیا میں کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جو آپ کو یاد رہا ہو یا جس کا آپ نے محسوس کیا ہو، یہ بڑا اسٹرینج ہوا ہو آپ کے ساتھ؟ ہاں کئی واقعات، لیکن اسٹرینج ایک واقعہ میں آپ کو سنائی. جو آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ شاعر بالکل بیکار لوگ ہوتے ہیں، کیا شعر لکھتے رہتے ہیں اور کس کام کی. لیکن اگر کسی کو اس سے کوئی سکون مل جائے، میرے خیال میں بڑا کام ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں کراچی میں اس وقت پوسٹنگ تھی، کسٹم ہاؤس کراچی میں. میرے پاس فیصل آباد ڈسٹرکٹ جیل سے ایک خط آیا. وہ اس آدمی کو موت کی سزا ہو چکی تھی، اپیل وہ کر چکا تھا، شاید صدر مملکت کے پاس گئی ہوئی تھی، اور اس کو ہاں آپ کی اجازت میں، اور اس کو کوئی اتنا یقین نہیں تھا کہ وہ بچا. اس نے مجھے خط لکھا، اور اس نے لکھا کہ یہ سچویشن ہے، مرنے سے پہلے میں آپ کی کتاب پڑھنا چاہتا ہوں. اچھا، عام طور پہ میں خطوط کے جواب نہیں دیتی، فین میل کا جواب بالکل نہیں دیتی، پاکستان میں کوئی خاتون یہ افورڈ نہیں کر سکتی. لیکن میں نے اس کے خط کا جواب دیا، اور میں نے لکھا اس کو کہ مجھے اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں کہ آپ کس کیس کے تحت اندر ہوئے، اور جسٹیفائڈ بھی نہیں، لیکن مرنے سے پہلے آپ کی خواہش ہے، آئی ایم ہیپی دیٹ آئی ایم ایبل ٹو فلفل اٹ. میں نے وہ کتاب ان کو بھیجی، اور میرا ایک بیچ میٹ اس وقت وہاں ایس پی تھا. میں نے اس کو فون کیا ٹو انشور کہ کتاب اس تک پہنچ جائے. اس تک کتاب پہنچ گئی. مجھے اس کی بڑی خوشی ہوئی کہ جانے سے پہلے اگر اس کی یہی خوشی تھی تو میں قابل تھی کہ اس خوشی کو پورا کر سکوں. اور ایک آدھ دفعہ جو بالکل مجھے انہوں نے فلودی، میں گر گئی کہ ابھی شیر کا آپ کی طرح کا ایک پروگرام تھا، وہ اسٹیج شو تھا، خوش بخت پیرنگ تھی. فروزہ میں اسٹوڈنٹ تھی آنرس فائنل کے ساتھ. تو یہ طے ہوا تھا کہ نوجوانوں کی محفل ہے، ایک خاتون پرانی جنریشن کی بھی آئیں گی، اور ہماری جو بدتمیزیاں ہیں وہ ان پہ وہ فکرے وہ لگائیں. کافی حد تک ریہرس پروگرام تھا. تو مجھے یہ کہا گیا تھا، ٹپ یہ دی گئی تھی کہ آپ یوتھ پر کوئی نظم، اور ایک میرے ذہن میں تھی کہ میں یہ اس طرح کی کوئی چیز لکھ سکوں گی. وہ بھی بالکل بدل گئی، بڑی بھی، اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ایک ایسی نظم لکھے. تو پروگرام جا رہا ہے آن ایئر، نہیں ریکارڈ ہو رہا ہے، نیچے پاس لوگ بیٹھے، جس میں ایک ایسی خاتون کے بارے میں ہو جو نوجوانوں کی محفل میں گر گئی. اٹ واز آل آف اے سڈن، آؤٹ آف دی بلو، ایبسلیٹلی. اگر میں نہیں لکھتی، یہ ہو سکتا تھا کہ میں نہیں لکھتی، ضروری نہیں کہ آپ کو کہا جائے اور آپ فوراً شعر لکھتے ہیں، کوائٹ پاسبل، بڑی بےزتی ہوتی. اور اگر لکھتی اور ویسی نہ ہوتی جن لوگوں کی توقع کو. بٹ آئی ڈیڈ. ریکارڈنگ چل رہی ہے، عالیہ کی گفتگو اور لوگوں سے ہو رہی ہے، اور وہیں بیٹھے ہوئے، جبکہ مجھے شاعری کے لیے تنہائی بہت ضروری میرے لیے. میں نے وہاں وہ نظم لکھی، اور اس کو پھر میں نے وہ ایک مشہور مصرے پہ ختم کیا، اگلے وقتوں کے ہیں لوگ کہ نہیں کچھ نہ کہو. تو یہ میرے لیے یہ ہو سکتا تھا کہ میں نہ لکھ پاتی، بٹ آئی واز ایبل ٹو ڈو دیٹ. میرے لیے یہ ایک کبھی ہوٹ ہوئی آپ کسی مشاعرے میں؟ نہیں کبھی نہیں ہوئی. یہ شرمندگی ہے، کیونکہ وہ احمد فراز کہتا ہے کہ کئی شاعر ایسے ہوتے ہیں جو صرف ہوٹ ہونے کے لیے آتے ہیں مشاعرے میں، اور شاعروں کو ہوٹ ہوتے ہیں سیریسلی لے سمجھتے ہیں، داد دی جا رہی ہے. اس سے پہلے میں آپ کو سے لوگوں نے بہت آپ نے وہ واقعہ سنایا نا کہ اس نے کہا مرنے سے پہلے آخری خواہش، وہ آپ نے واقعہ سنا ہو. ایسی آخری خواہش والا ایک اور واقعہ میں آپ کو سنا دوں. وہ ایسے ہی بندہ اس کے وقت آ گیا پھانسی دینے کا، تو اس سے کہا گیا کہ آخری خواہش کو ہے. اس نے کہا ہاں ہے. اس نے کہا کیا ہے آخری خواہش؟ اس نے کہا میں نے تربوز کھانا ہے. انہوں نے کہا پر آج کل تو سردی ہیں، تربوز تو گرمیوں میں ہوگا. انہوں نے کہا مرنے کوئی جلدی نہیں. آخری خواہش ہے تربوز، جلدی نہیں. یہ مجھے احمد فراز نے سنایا. فراز شاعر کیسے؟ بہت اچھے شاعر، بہت اچھے شاعر، بہت اچھے شاعر ہیں، اور چند ان شاعروں میں سے ہیں جو عوام اور خواص میں یکساں طور پہ مقبول ہیں. ویری ریئر تھے. اچھا میں یہ پوچھنے بغیر آپ نے کہا تھا ایسی بات نہیں کرنا، میں پوچھوں گا ضرور، اس پر آپ جواب دیں. افتخار عارف صاحب سے کیا جھگڑا تھا؟ کوئی جھگڑا نہیں. چلیے بس اس میں سے خود کلام میں سے پروین شاہ کا خود کلامی میں آپ کو ایک غزل. کچھ تو ہوا بھی سرد تھی،
कुछ था तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल। बहुत अच्छा। बात वो आधी रात की, रात वो पूरे चांद, चांद भी अनचैत का, उस पे तेरा जमाल भी। सबसे नजर बचा के वो मुझको कुछ ऐसे देखता, एक दफा तू रुक गई गर्दिश माहौसाल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दिल तो चमक सकेगा क्या, फिर भी तरश के देख लें। दिल तो चमक सकेगा क्या, फिर भी तरश के देख लें। शीशा गराने शहर के हाथ का ये कमाल। बहुत अच्छा। शीशा गराने शहर के हाथ का ये कमाल भी, उसको न पा सके थे जब, दिल का अजीब हाल था। अब जो पलट के देखिए बात थी कुछ महाल में। अब जो पलट के देखिए बात थी कुछ महाल भी। मेरी तलब था एक शख्स, वो जो नहीं मिला तो फिर हाथ तो आसियों गिरा, भूल गया सवाल में। एक दफे से लेकिन थोड़ा सा। मेरी तलब था एक शख्स, वो जो नहीं मिला तो फिर हाथ तो आसियों गिरा, भूल गया सवाल भी। गाह करीबे शाह रख, गाह बैदे वहमो ख्वाब, गाह करीबे शाह रख, गाह बैदे वहमो ख्वाब। उसकी रफाकतों में रात हिजर पे था विसाल पे। आखिरी शेर है कि शाम की ना समझ हवा पूछ रही है एक पता, शाम की ना समझ हवा पूछ रही है एक पता। मौजी हवाए कुए यार, कुछ तो मेरा ख्याल भी। कोई बेशुमार जेवर शेवर का आपको नहीं, कपड़े शपड़े को बहुत ज्यादा बनाना चाहिए, नहीं, प्रॉपर्टी को बड़ी खड़ी करनी चाहिए। नहीं, मगर मुझे किताबें जमा करने का शौक है बहुत ज्यादा। अभी भी मेरे पास में ख्याल 5,000 to 6,000 बुक्स होंगी। अच्छा, माशाल्लाह। खुशी का मफहूम क्या आपके सामने? बहुत मुश्किल सवाल है, जो जिंदगी को वर्थ लिविंग बना दे, लगे कि नाउ आई मस्ट लिव ऑन। अच्छा, it can be anything. It can be an idea, it can be feeling, it can be a feeling. For instance, when you are in love, आपका पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है जिंदगी का। कब पता लगता है that one is in love? ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं। मैं आपसे देखिए, आप शायरा हैं, शायरे तो बड़े सेंसिटिव लोग होते हैं, वकील तो होते हैं ना जी, हम बड़े क्रूड होते हैं ना, उन्हें पैसे पूसे लेने होते हैं, जाके बहस करनी होती है। What is that defining point जब इंसान ये कहे कि हाँ अब मैं मुझे मोहब्बत हो गई है? कब कंफ्यूजन हो, ये कंफ्यूजन है भाई, कैफियत एक मुश्किल। हाँ, I think when you start feeling incomplete without a certain person. अच्छा, and you want to share everything with him oblique her. ठीक है, ये तो पॉसिबिलिटी है ना कि जरूरी औरत को सिर्फ मर्द से ही इश्क हो? क्या अपनी जातों से नहीं इश्क हो सकता? मतलब असातिज़ा से इश्क नहीं हो सकता? वो इश्क नहीं होगा, वो नहीं, उसे आप क्या कहते हैं? अकीदत। मेरी अपनी डेफिनेशन जो है इन अल्फाज की, इट्स नॉट दैट। नहीं, इश्क एकदम होता है कि ग्रो करता है? नहीं, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड रियली, मैं प्रोब करना चाहता। ये होता लाइटनिंग होती है कि आप देखते हैं एक शख्स को तो धस करके मैं कहता है इश्क हो गया। डिपेंड्स ऑन द पर्सन यू एनकाउंटर। अच्छा, कुछ लोगों के साथ आप बहुत अरसे से होते हैं, यू डोंट नो दैट यू आर इन लव विद देम। ये भी पॉसिबिलिटी है, एंड कुछ लोग थंडर एंड लाइटनिंग, ये भी पॉसिबिलिटी। लेकिन मेरे ख्याल ज्यादा जो लास्टिंग है वो पहला केस, थंडर एंड लाइटनिंग तो खत्म हो गया, आके गया। इश्क में इजहार इश्क जरूरी है कि महसूस हो जाता है? देखिए, अगर मैं कहूँ कि इजहार इश्क जरूरी नहीं है तो खुशबू का तो कोई जवाब होता है, ठीक, तो वो तो जरूरी है, वो जरूरी है। लेकिन आपके मरासिम में नौयत बहुत जल्दी उस स्टेज तक पहुंच जाती है व्हेन यू डोंट हैव टू टॉक। ठीक, आपकी खामोशी गोया होती। हम इश्क क्यों कर, इंसान इश्क क्यों करता है? इसलिए कि इन रिटर्न इश्क हो, कि इश्क करना ही बाय इटसेल्फ एक कंप्लीट अमल है। देखिए, थोड़ा तो आदमी चाहेगा कि रेसिप्रोकेट हो। मैं बिल्कुल नहीं मानती कि, आई एम सॉरी, आई डोंट बिलीव इन दिस, कि आप तन्हा एक तरफा, ये शायद पुराने ज़माने की दास्तानों में होता होगा तो होता होगा, अब तो नहीं होता। लेकिन उसमें भी आपको ये देखना चाहिए कि आपकी डिमांड्स कहाँ तक है। दूसरे आदमी का दम तो नहीं घुट जाएगा, ब्रीदिंग स्पेस दोनों देनी चाहिए।
इंटेंसिटी ऑफ इश्क नापने की क्या है? जान दे दे वो दूसरे कि आप कितने सेल्फलेस हैं, आप दूसरे का कितना ध्यान करते हैं, अच्छा, आपके अपने इंटरेस्ट किस हद तक सानवी हो जाते हैं। सेंट्रल प्लेस एक और आदमी की आपकी जिंदगी में हो जाती। आई कंसिडर दैट लव। ओके, तो थोड़ा सा आगे इश्क में या मोहब्बत जिसे हम कहते हैं, टॉकिंग अबाउट वही मोहब्बत, ये इसमें एक तरफ से देना ही देना, गिव ऑफ योर सेल्फ, गिव ऑफ एवरीथिंग, कुर्बानी। इज इश्क मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ सैक्रिफाइस यू मेक? कि कुर्बानी एक यार्डस्टिक है इश्क नापने की? एक वन ऑफ द यार्डस्टिक इज दिस, अच्छा, हाउ मच यू कैन गिव अप। ये तो है, इट इज देयर, इट हैज टू बी देयर। जब इश्क होता है, इंसान जब इश्क करता है तो क्या दूसरे वो तलाश क्या करता है? अपना मेयार तलाश करता है? इश्क में एक्सेप्टेबिलिटी होती है कि जैसा ही आदमी वो कबूल है मुझे? नहीं, आपके जहन में कोई मेयार होता है, कोई इमेज होता है। ज्यादातर केसेस में तो यू आर इन लव विद दैट इमेज। ठीक है, ये इत्तेफाक की बात है कि आपको वो इनकारनेट कहीं मिल जाए, दिस इज रेयर थिंग। मिल जाए तो फबिहा, नहीं तो आदमी तलाश में ही रहता, और तलाश में रहना चाहिए। ये मैं दोस्त जैसे पूछने में क्या है, इश्क में डिसअपॉइंटमेंट हो तो उसे कैसे टैकल करते हैं? क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट तो होते हैं, होती है ना जी इसमें। ये समझ लिया जाए कि दूसरा इंसान जो है वो इंसान है, फरिश्ता नहीं। अच्छा, और गलती हो सकती है, और गलती के अलावा नेगेटिव चीज़ें उसमें हो सकती हैं। आप उस इंसान की ज़ात से मोहब्बत करते हैं या सिफात से, ये तय कर लें, बड़े मसाइल हल हो जाए। अच्छा, ज़ात से कि सिफात से? सिफात तो ख़त्म हो सकती हैं, बदल सकती हैं, उनमें तब्दीली आ सकती है, ज़ात तो वही रहती है। और आप उस आदमी को उसकी तमाम तर नेगेटिव एंड पॉजिटिव सिफात के साथ जब एक्सेप्ट करते हैं, फिर ये चीज़ें आप इनकी तरफ जाते ही, डिसअपॉइंटमेंट्स होते ही नहीं। फिर अगर नेगेटिव ज्यादा नजर आनी शुरू हो जाए तो शायद इश्क का जज्बा को ठंडा पड़ रहा है। इज दैट एन इंडिकेटर कि वो? जी, अगर इट डिपेंड करता है आप कितने ऑब्जेक्टिव हैं आपके अंदर, आप डिटैच होकर कितना अपने आप को देख सकते हैं उस आदमी से। इफ यू कैन देन इट इज डूम्ड। अच्छा, इफ यू कैन देन इट इज ऑब्जेक्टिव हो कि आप कैसे, आप हाउ कैन। कई रिश्ते होते हैं, ताल्लुकात होते हैं। मेरी थियरी है, मेरे एक दोस्त जो स्टूडियो में बैठे हैं उनसे इससे इत्तेफाक नहीं करते हैं, कई दफा इश्क एक हैबिट, आदत बन जाता है, एक ग्रुप सा बन जाता है, उसी में आप फिर रहे होते हैं। जो पास्ट वाला इश्क होता है आप उसे रिलीव कर रहे होते हैं, वो कब का मर्द कब दफन हो चुका होता है कि आप निकलते नहीं उससे। मुमकिन है कि उस इश्क की क्लिनिकल डेथ हुई हो। अच्छा, मे बी इट इज स्टिल अलाइव समवेयर। कोई मसनूई तनफ्फुस को किसी तरह से कहीं से मिल रहा, कंप्लीटली डेथ, इट इज नॉट डाइड कंप्लीटली, हो सकता है। और आप उसी एक आदमी की झलक तलाश कर। अच्छा, फिजिकल ब्यूटी कितनी जरूरी है इश्क में? कुछ ज्यादा नहीं, कुछ ज्यादा नहीं, इनिशियल होती है बास केसेस में। बाद लोग सिर्फ चेहरा ही देखते हैं, इधर क्या है नहीं, उस पर ध्यान नहीं देते, फिर बाद में रोते रहते हैं, टक्कर मारते रहते हैं हम। बट व्हाट मैटर्स इज द ग्रे मैटर, मैटर्स द माइंड। आपके चेहरे पे रोशनी तो जहानत से आती है ना, वो नहीं है तो फिर थोड़ी देर का एक धमाका हुआ एंड फिर सालों खूबसूरती बहुत खूबसूरत चीज़ है। लेकिन इस तरह के रिश्तों में, और जहाँ इतनी खूबसूरत बात हो, व्हेन यू टॉकिंग ऑफ लव, तो फिर ये सानवी हो जाती है। ठीक ठीक, खूबसूरती का मेयार क्या है आपका? व्हाट इज ब्यूटी? ये बड़े मैं एक क्लास में अपनी कभी कभी पढ़ाता भी हूँ, तो वो सईद साहब भी बैठे, उनका ख्याल एक उन्होंने डेफिनेशन, आपने कपड़े पहने, उसने कहा अंधे को अगर दे दिया जाए सिल्क तो कुछ सारी जिंदगी में देखे तो हाथ लगाएगा तो कहेगा ये खूबसूरत है, तो उसे पूछा जाए क्यों, तो वो कहता है कहता नहीं, स्मूथनेस। व्हाट इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी? लेट्स टॉक अबाउट ह्यूमन ब्यूटी फर्स्ट। देखिए, खूबसूरती तो रिलेटिव चीज़ है, उनके जो चीज़ मेरे लिए खूबसूरत हो आपके लिए नहीं, पॉसिबिलिटी। मेरे लिए खूबसूरत इंसान या मंजर या बात वो है जो मेरे दिल को छुए। आई मस्ट बी अट्रैक्टेड टू इट। मंजर, बात या इंसान, कोई कुछ भी एनीथिंग, और मैं रुक जाऊं, मेरी सांस रुक जाए, इंटेंसिटी उसकी है। ऐसे लोग हैं ना, आप देखते हैं ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी जिसको आप कहते हैं। ठीक है, मसलन आप जा रहे हैं कागान, आप झील सफल मलूक पे अचानक आपकी गाड़ी टर्न करती है, सडनली
ठीक है, you just stop. You stop. ये हुस्न है, या आपको कोई बहुत खूबसूरत चेहरा, ऐसे चेहरे हैं और हमारे मुल्क में कि आप रुक जाते हैं उनको देख। ऐसे ज़हीन लोग हैं कि उनकी बातों पे it depends. बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। मैं हमेशा जब भी अशफाक अहमद साहब के पास बैठा या इजाज हुसैन बटालवी साहब के पास बैठा, या एक और हमारे वकील रजा काजिम साहब के साथ बैठा, wow, you know, they just mesmerize you. It is so overwhelming. With the power of their thought. तो it could be anything. उसको सिर्फ फिजिकल या फेशियल ब्यूटी तक कन्फाइन रखना मेरे ख्याल में बड़ी ज्यादती है खूबसूरती को। आपको अपनी क्या अदा अच्छी लगती है? इतनी सारी बातें होने के बाद मेरे ख्याल में मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे खामोशी अच्छी लगती है अपनी प्रोग्राम डाल कर। But what is it about that you like? You know, sometimes हम और चूँकि आप इंट्रोस्पेक्शन तो करती हैं। हाँ, मेरे ख्याल है कि मुझे अपना सेंस ऑफ ह्यूमर पसंद है क्योंकि इसने मुझे मैं जा रहा हूँ ये जिंदगी को मेरे लिए टॉलरेबल बनाए रखा। और जब भी कोई मुश्किल वक्त आया आई वॉज एबल टू लाफ एट माई सेल्फ। अच्छा, इस चीज़ ने मुझे सहारा दिया, तो मैं ममनून हूँ। और मेरे छोटा सा हल्का है दोस्तों का, वो सब के सब अदीब शायर नहीं, बल्कि प्रैक्टिसिंग पोएट तो कोई है ही नहीं, अदब का शौक सब में, उन सब में हमारा कॉमन डिनोमिनेटर वो यही कि वी ऑल शेयर अ सेंस ऑफ ह्यूमर। ठीक है, और हम एबिलिटी टू लाफ साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम। दोस्त की डेफिनेशन क्या है आपकी? जो आपकी बात आपके कहे बगैर सुन ले। कहने की जरूरत नहीं होती है जी। The idea must flit across, पहुंच जाए उसके तक। और मैं इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हूँ नहीं कि थोड़े से दोस्त हैं, थोड़े बनते हैं, हाँ, लेकिन मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, मेरे दोस्त हैं। I mean they are just one call away from me. ठीक है, वो मैं जैसे क्योंकि मैं आप पिटा कर डालना चाहता हूँ। एरिस्टोटल से पूछा गया कि दोस्त की डेफिनेशन क्या है? Who is a friend? उसने कहा friend is a person who will always do what he thinks is in your best interest, not necessarily asking you. ये कई लोग कहते हैं कि दोस्त वो होता है जो आप उसे कहेंगे कि मैं चल के कत्ल करना होगा, मैं तो ऑर्डनल कर देना। दोस्त वो है जो आपके जो इंटरेस्ट में है वो आप बात करें। अब आई गुड हाउस वाइफ, आप घर में आप गंडे काट के बड़ी खुश होती हैं कि नाक में आपकी बू आ रही हो प्याज की और लहसुन की और हाथों से बू आ रही हो, और ये नहीं है। नहीं, खाना बना लेती हूँ और पहले नहीं आता था, लेकिन मेरा बेटा बहुत चटोरा है। अच्छा। और उसकी वजह से मुझे सीखना पड़ा और अब ठीक ठाक बना लेती हूँ। मुझे ये ध्यान रहता है खाने से ज्यादा ये कि घर मेरा ऑर्डर में रहे, अदरवाइज वैसे तो शायद ना लगे आपको, और नीट क्लीन हो। अच्छा, नीट क्लीन। You're not a messy person. मसलन आप तौलिया महीने बाद बदल लेती हैं। What do you mean? कसरत से कि थोड़ी लेकिन बहुत सॉफ्ट। अच्छा, शोर नहीं मचाती, खुशबू का। इस बात हमारे वो रेस कोर्स पार्क में लाहौर वॉक करते हैं, वहाँ की खवातीन जाती हैं, वो गुजर जाए तो नाक बंद हो जाए, इतनी खुशबू लगा के जाती, इतनी ज्यादा कि बिल्कुल नहीं। खुशबू तो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड एंजॉय इट, बहुत करीब हो, इट्स नॉट फॉर द जनरल पब्लिक। पूरा माला ही सुन रहा हो इसकी। नहीं, इट शुड बी वेरी सॉफ्ट एंड अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड सीजन एंड योर ओन मूड। ये तो नहीं कि सुबह आप पॉइजन लगा के चले जा रहे, पॉइजन तो सुबह की खुशबू ही नहीं है। मतलब सुबह जब होती है तो धड़ंग छलांग मार के बिस्तर से उठ के टच और टोस्ट करती हैं। मुझे तो सुबह बिस्तर से उठना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, क्योंकि मैं रात देर तक पढ़ती हूँ, शायद इस वजह से कोई इतनी एनर्जेटिक नहीं, लेकिन एक दफा आप आगे बिस्तर से तो ठीक, फिर नहीं कि मैं अच्छा चला दफ्तर नहीं जाती। ये फूड खाने के बारे में आप पर्टिकुलर हैं? नहीं, कोई खास नहीं, एनीथिंग वेल कुक्ड इंक्लूडिंग स्टोरीज। ठीक होना चाहिए, एनीथिंग वेल। अच्छा, आप गुफ्तगू जब करती हैं बड़ी सिंपल करती हैं, बहुत से लोग गुफ्तगू करते हैं तो बड़े बड़े लफ्ज इस्तेमाल करके उठा का टूका डालने की कोशिश करते हैं लैंग्वेज को। नहीं, मैं जो हूँ वही सामने रहना चाहती हूँ। बहुत बड़े बड़े आस। तो
उस बेचारी को सुनिए। It's a good story. जैसी है कहानी अच्छी है, कहानी बहुत अच्छी है। यही बताना था ना कि वो ये बताना चाह रही थी कि उसको कितना सदमा हुआ, उसकी जरूरत नहीं थी। तो हमारे अक्सर ये लोग ये करते हैं कि ये जाहिर करने के लिए वो कितने लायक व फायक हैं और हेवी अल्फाज इस्तेमाल करते, इसकी जरूरत को नहीं। बी सिंपल एंड नेचुरल, बी योरसेल्फ। मुसीबत ये है कि इस बी योरसेल्फ की एक मुसीबत है ना, एक पहला हिस्सा पहले कि यू मस्ट फर्स्ट नो योरसेल्फ, पहले अपने आप को परखें तो सही ना जी, वो तो तभी बी योरसेल्फ होगा ना। वो ये है कि नहीं, वो किसको इम्प्रेस करना चाहते हैं? आई वॉन्ट यू टू रिएक्ट टू इट। जी, कई लोगों को अपना पता नहीं होता, वो लिबादे इतने पहन लेते हैं कि अपने आप को भी उस लिबादे के अंदर देखते हैं, वो निकाल के देख नहीं सकते। No? A lot of people live artificial lives. Oh yes. इतने मुनाफिक हैं कि वो अपने साथ भी मुनाफिक करते हैं, वो फिर उनकी शख्सियत बन जाती हिस्सा बन जाती है। बिल्कुल। तो खैर जिसका जिक्र मैंने अभी किया वो उस बेचारी के अंदर कभी कभी आपसे कोई घटिया बात हो जाए किसी के साथ, तो आप अपने आप को कोई मलामत होती है कि यार ये नहीं, ये ना ही करते हैं हम तो अच्छा, कि घटिया बात कभी होती नहीं? नहीं, क्यों नहीं, मैं आई एम ए ह्यूमन बीइंग, उससे भी गलतियां होती हैं, तो मैं अपने आप को काफी कर्ज करती हूँ कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसा है, डांट डपट करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि फिर रिपीट ना फिर हो जाती है। आप बड़ी सॉफ्ट स्पोकन खातून है ना, आप बड़े धीमे लहजे में बात करती हैं, मुझे लगता है जैसे आपको गुस्सा आता ही नहीं। बहुत आता है। अच्छा बात है, फिर आपका लहजा जरा ऊंचले काले से शुरू हो जाती है बात, साथ में सुर से फिर आप गुफ्तगू करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, और लड़ती भी आप दलेरी के साथ हैं? नहीं, अगर मैं कन्विंस हूँ कि मेरी बात सही है विद कन्विक्शन, फिर तो आई रेज माय वॉइस, लेकिन यूजुअली होता है कि मेरा एंगर कोल्ड एंगर होता है, आई विथड्रॉ इन माय ओन शेल, go back to that। और मेरा इंडिफरेंस मेरा गुस्सा है, मैं कोई मारकुटाई नहीं करती, ना जुबान चलाती हूँ। मेरे लिए ये चीज़ इतनी हर्टिंग होती है कि आई वॉज मिसअंडरस्टूड, या मुझसे किसी ने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, गलत बात की, आई बिकम इंडिफरेंट टू द पर्सन। ठीक, बिल्कुल। गाना नहीं आपने सीखा कभी? कोशिश की थी। कब? इंटरमीडिएट, बस फिर शायरी की तरह। आप गला तो ऐसे साफ करने लगे जैसे अभी आप गुनगुना के हमें बताने लगे। गला ठीक नहीं है, गला ठीक नहीं। अच्छा, गला ठीक नहीं। असल में मैं डिबेटर भी थी और शेर भी लिखती थी, मुझे फिर एक रास्ता चुना था, दोनों अलग अलग रास्ते मेरे हिसाब से ना। मैं डिबेट तो आपको हुजूम की तरफ ले जाती, शायरी तन्हाई, बेसिकली तन्हाई पसंद। मैं बड़ा आशा करता हूँ अच्छी बात को क्या जाए ना, आई फील रश्क, I am jealous, if only I am jealous of his intellectual superiority. तो हम ठहर के जाते, उनके घर पे गया तो उन्होंने एक बात की, and I want you to react to it। और कहा देखो नईम बुखारी, लोनलीनेस एक चीज है और सॉलिट्यूड एक चीज है, सॉलिट्यूड बहुत जरूरी है। क्या फर्क है दोनों में? बहुत जरूरी। आप बताइए। नहीं, मैं इन दोनों का फिलोसॉफिकल फर्क तो नहीं बता सकती आपको, लेकिन मैं तन्हाई की जरूरत जरूर बता सकती हूँ कि अपने आप से मिलना बहुत जरूरी है। अच्छा, बहुत जरूरी। जो आप कहते हैं ना, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता, If you keep meeting yourself, और ये बड़े हौसले का काम। ठीक है। और फनकार की तो अव्वलीन जरूरत ये कि पहले अपने आप से। मैं तो वकील हूँ, मुझे तो ना देखें ना जी, जस्ट एज ए फ्रेंड ही खड़ा है। अपने साथ मुलाकात करना, मुसीबत ये होती है कि बाज दफा अपने आप से मुलाकात सही हो जाए तो अपने ऊपर क्या करने को दिल करता है। You feel like vomiting on your own self. Then you should do. Then you vomit on your own self and clean it. और वो catharsis come. Then you should cleanse yourself. अच्छा। A new person. अच्छा। मुमकिन है कि उस लार्वे से एक तितली निकला है। तो अगर रोज ही उल्टी करने को दिल करे तो फिर क्या? फिर और आपके घर से काफी करीब है वो जगह, लाहौर में। पढ़ के सुनाइए, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छा पढ़ता हूँ, लेकिन आप मेहरबानी करें। आज चलो सुनाइए। खूबकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हर चाई की। तेरा पहलू
तेरे दिल की तरह आबाद रहे, बस तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे, तुझ पे गुजरे न क़यामत शब तन्हाई की, उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। आप रिलैक्स कैसे करती हैं? कोई अच्छी किताब पढ़कर, म्यूजिक सुन के, या एक लॉन्ग वॉक अकेले। अकेले वॉक करती हैं तो आप अपने आप से बातें करती हैं? मेरा ख्याल है अक्सर मेरे बेटे ने मुझसे कहा है कि आई फाउंड यू टॉकिंग टू योरसेल्फ। अच्छा, आर यू अ बिटर पर्सन? नहीं, सरप्राइजिंगली नॉट। अच्छा, हालांकि मुझे होना चाहिए था, कि नहीं, मेरे अंदर forgiveness है। I may not forget it, ठीक, but I do forgive. ये bitterness नहीं आई है मेरे अंदर। बड़ी हद मेरी पोइट्री में शायद वो कैथारसिस हो गया। मेरी जो दूसरी किताब है, खुशबू में तो नहीं, खुशबू तो प्योर सिंपल लव पोइट्री, लेकिन सदबर्ग और फिर खुद कलामी में आपको बिटरनेस बहुत मिलेगी, वो ज़ाती हवालों से भी है और मुल्की हवालों से। मैं बिल्कुल नॉर्मल नहीं हूँ, कोई शायर बिल्कुल नॉर्मल नहीं होता, अगर है तो वो शायर नहीं है। ठीक है, थोड़े से छिड़के हैं आप, बिल्कुल थोड़े से लेकिन नईम साहब ये डिवाइन मैडनेस होती है, और अगर ये ना होती तो आपको पैराडाइज लॉस्ट पढ़ने को मिलती, शेक्सपियर पढ़ते आप, मस्जिद कर्तबा पढ़ सकते थे। तो ये ज़रूरी, कुछ लोगों का माशरे में नॉर्मल होना ज़रूरी। कुछ लोग कहते हैं ना कि हम चलते फिरते घूमते फिरते हम शेर लिखते, मैं नहीं लिख सकती, पता नहीं वो कैसे लिखते। How do you write? You get into a proper frame of mind? वो तो मुझे पता चल जाता है कि something is cooking, brewing up. अच्छा, लेकिन यूजुअली वॉक करते हैं, I walk a lot, और मैं उस वक्त लिखती हूँ। और वैसे मैं अपने पास एक छोटी सी डायरी रखती हूँ, कभी कुछ फ्लैश कर जाए, कोई लाइन, कोई मिसरा, कोई नज़्म का हिस्सा, तो मैं उसमें नोट डाउन कर लेती हूँ। कौन से हल्के हैं बड़े हमारे यहाँ? हमारे यहाँ देखें, एक तो कासमी साहब का ग्रुप है, ठीक है, और एक डॉक्टर ज़ीरा का ग्रुप है, अच्छा, और फैज साहब का ग्रुप है जो ओवरलैप करता है दोनों में, क्योंकि मैं नहीं मानती कि जो शख्स कासमी साहब के कैंप में वो फैज साहब से किसी तौर कह सकता है कि जी मैं तुमको मानता ही नहीं। अच्छा, ये फुल अहमकाना बात होगी। ये मेजर ग्रुप्स हैं, इसके अलावा छोटे छोटे पॉकेट्स कराची इधर उधर मुफस्सल वहाँ चलते रहते हैं। वे शायर आमतौर पे गरीब गुरबा ही रहे। हाँ नहीं, बिल्कुल सही, गरीब गुरबा, क्योंकि माशरे ने शायर को कभी उसकी जायज़ हैसियत दी नहीं। एंटरटेनर तो वो बहुत अच्छा है, पोस्ट डिनर आइटम भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद नहीं फिर जाए और फाके जाए, बल्कि हो सकता तो सवारी का बंदोबस्त खुद ही करे। मुशायरे के बाद अक्सर ये होता था, ये शहरों में मुशायरे होते थे पहले, तो मुशायरे के बाद तो ज़मीन भाग जाते थे। तो ये जो हमारे पाकिस्तानी बाहर गए और आबाद हुए, शुरू का था तो सर्वाइवल में गुजर गया, फिर उसके बाद उनको कल्चर चाहिए था, ठीक है, तो उन्होंने आर्टिस्ट, फनकार, शायर इंपोर्ट करने शुरू की। तो उस इंटरनेशनल सर्किट पे फिर मुशायरे भी होने लगे, और मैं भी गई वंस, अच्छा जी, जिसमें कि मैं कनाडा, यूएस और इंग्लैंड वगैरह है हमारे पास देने के लिए दुनिया को, कि नहीं? बहुत कुछ फोक हेरिटेज इतनी है कि आप यही हमारे लोग जाते हैं बाहर तो दे जस्ट गेट क्रेजी। अल्लाह फकीर और आपके जिनके आप बहुत आपकी पॉलिटिकल पर्सनालिटीज आपको कौन सी पसंद है, किसके आप फैन? मुझे भुट्टो साहब बहुत पसंद है। अच्छा, क्योंकि आई वॉज ग्रोइंग अप एंड ही वॉज ग्रोइंग अप पोलिटिकली, ठीक है, और जो एक पॉलिटिकल लीडर में करिश्मा होता है, विगर, डायनामिज्म, मुझे सब कुछ उनमें नजर आते थे। फिर वो बहुत अच्छा बोलते थे, और लफ्ज़ मेरी कमजोरी, मैंने हमारी जिंदगी में लफ्ज़ लिखाई, ठीक है, लफ्ज़, और लगता था कि वो कोई नई चीज़ हमारे लिए लेकर आए, नए ख्वाब, नया विजन, उठो मेरी दुनिया की गरीबों को जगा दो, मुझे उसकी अमली तफसीर वो नजर आते थे। लेकिन ये उस वक्त तक था जब तक मैं तो स्टूडेंट थी, इतना मुझे पॉलिटिकली मैं इतनी अवेयरनेस मेरे अंदर नहीं थी कि मैं समझती कि उनकी पॉलिसीज़ कैसी हैं कैसी नहीं है। लेटर ऑन जब तारीख की तालिब इल्म के हैसियत से मैंने उनको एनालाइज किया तो कहीं कहीं ऐसे स्पॉट्स मुझे नजर आए जो नहीं होने चाहिए। मतलब मैं उनकी एजुकेशन पॉलिसी से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं थी। अब डाल में सीमेंट फैक्ट्री ससियत कॉलेज में कुछ फर्क है, दोनों को कैसे नेशनलाइज कर सकते हैं? There's no point in that was an absolutely useless gesture. लेकिन उन्होंने जो गरीबों को इज्जत नफ्स का एहसास दिया, ये इतना बड़ा उनका कारनामा कि सदियां हम गुजर जाएं लेकिन हम दोबारा ये चीज़ इस तरह उस स्पीच से नहीं क्रिएट कर सकते। ये उनका बहुत बड़ा कमाल है। और पढ़े लिखे आदमी थे, मुझे पढ़े लिखे आदमी बहुत अच्छे लगते हैं,
اچھا جی بڑی مہربانی اسی نے وضاحت کی بہت پسند اوکے فائن. اس لیے مجھے بہت چلا. آپ نے کب فیصلہ کیا کہ آپ سول سرونٹ بننا چاہتی ہیں؟ یونیورسٹی میں ہی خیال تھا کہ میں سی ایس ایس کے نہیں بالکل بھی نہیں. ہاں نہیں میں تو ماسٹرز کرنے کے بعد لٹریچر میں باہر جانا چاہتی تھی پی ایچ ڈی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. یہ تھا پی ایچ ڈی کرنے میں نہیں جا سکی. مجھے پتا نہیں تھا کہ پی ایچ ڈی کے لیے کیسے جاتے ہیں. ایک میکینزم ہے جو بعد میں پتا چلتا ہے. یہی میکینزم ہے جو بعد میں پتا چلتا جی اس وقت مجھے نہیں پتا. ٹھیک. تو میں نے کہا چلو پڑھا لیتے. میں امتحان دے کر اپنے کالج میں گئی تھی. اپنے پرنسپل سے ملنے کا تم کیا کر رہے ہو ادھر آ جاؤ. تو میں پڑھانے لگی. پھر ایف پی ایس سی کے ایگزامینیشن ہوئے انٹرویوز. آپ کو سلیکٹڈ. مجھے انہوں نے اس وقت کالج نیشنلائز ہوئے تو انہوں نے مجھے کہیں بھیج دیا پڑھانے لگی. مجھے بہت ڈسلیوژن ہوا پڑھانا شروع کرنے کے بعد کیونکہ اسٹوڈنٹس پڑھنا نہیں چاہتے تھے. میرا سبجیکٹ بھی ایسا تھا کہ ان میں سے اکثریت تو انگریزی کلاس 6 سے شروع کرتی تھی جو میرے پاس آتی تھی. ان کے لیے ڈکنس یا اسٹیفن لیکاک ٹو مچ تھے. میں ان کو جین آسٹن پڑھا رہی ہوں. اٹ واز ٹو مچ فار دیم. کوئی کمیونیکیشن. مجھے یہ احساس تھا کہ بس میں دیواروں سے گفتگو کر رہی ہوں. تو جب اس سے نکلنے کے لیے میں نے سوچا کچھ تبدیلی آنی چاہیے. تو دیٹ واز مائی لاسٹ چانس ٹو ٹیک دس ایگزام. سرکاری ملازموں کو اجازت ہوتی ہے 25 کے بعد بھی. سو آئی ٹوک دی ایگزامس. آئی ڈڈ فیئرلی ویل. پھر واپسی کا کوئی رستہ نہیں تھا. بس پھر میں اس میں آ گئی. آپ کو پتہ نہیں آپ کو گفتگو اپنی سننے میں مزہ آیا کہ نہیں؟ ہمیں آپ کی بات اور یہ بڑی خوشی ہوئی ہے جیسے میں نے کہا. لیکن آپ کی گفتگو میں نے انجوائے کی. اس کے بارے میں میں نے پہلے کہا تھا کئی لوگوں کا آپ دور سے جانتے ہیں تب جب آپ ان کو ملتے ہیں تبھی ان کا پتہ لگتا ہے. تو پھر سے تھینک یو ویری مچ. آپ تشریف لائیں. کوئی آپ پیغام دینا چاہتے ہیں قوم کو کہ نہیں دینا چاہتے ہیں؟ کون سا پیغام؟ میرے کو بہت ہی لیٹ ہے پیغام کوئی بھی. جی پاکستان کی قدر کریں. جی ہاں بے شک بے شک. اس سے بڑا تحفہ خدا نے ہمیں نہیں دیا.